A very good evening to all of you. We are having this session precisely to give us a kickstart to our preparation of geography optional. I think it is very easily done, talked about so many times, so many references that we have been somewhere in the confusion, not just about what to read, not just about how to go about with the preparation, but also eventually how to consolidate the information that we grab in due course of our preparation to eventually convert it into marks that will secure a good rank for me in the final result. I'm here in front of you precisely to give you that well-tested, I can say, formula with which we at our center have been grooming, guiding, providing direction to many of the successful candidates. Of course, with their efforts, their dedication, only our direction, support, and guidance. What exactly you need to do? What will make your approach of study? What will make your approach of preparation different from your competitor so that you actually grab what you are looking in for? It surely asks for dedication, determination, and consistency. I always justify on these three facts with the addition of intelligent work. Without wasting any time, let me quickly get on to the understanding, the basic point, why we are here. Why are we here? What is the logic of selecting, non-selecting different types of textbook, identifying important purview that is required for this particular examination preparation. I'm coming to all the questions answer, Ravi. I hope I'll be answering all the questions that are cropping up in the live chat. Let me just speak out about the things. Most of the things will get clarified. Otherwise, you definitely feel free to give me any of the reference that you want to, so that I will be coming up specific with the specific doubt clear. Okay. So if I take topic-wise factor, so let us begin with hardcore physical geography, or let us talk about individual topic-wise segment. Let us not mix it up. Okay. So from geomorphology, and I'm using via climatology across oceanography to bio and environment geography. Your standard basic text is physical geography by Savindra Singh. You say, I'm aware of it. I'll say, excellent. You should be aware. When you are preparing for certain examination, you are required to be aware of its requirements, its reading. So let us put it as our base book. I take it as base book, and every passing year, it is getting proven that what is the value of Savindra Singh. Barring the exception of the question that came up, pseudo volcanic feature, which was a shocker, if I can use that term, it doesn't come up that swiftly in the older print of Savindra Singh, but it is right there in the index page of Thornbill. So what should I do? I should start picking up textbook 1, textbook 2, textbook 3. No, that is not the case. Be very rational. If I say mandatory read for every student who is orienting towards self-preparation. And I again repeat, self-preparation. You are not taking support of any coaching. You have to read these books from page 1 to page end. If you have taken coaching, you are aware of the study material, because it's something which is by default.
that the study material, the printed study material that is being provided, that I provide to my students, is basically the compilation of all the important sources together. So we try to make your task easy. So if it is that you are referring the study material, then are you supposed to read A to Z of Savindra Singh? No, you are not. And what are the other textbooks that you should take into reference? So first thing, of all these physical principles of geography, I call it section A, paper 1, the syllabus also calls the same. So if I take up this particular section, that is the first 5 topics of our syllabus, I pick up Savindra Singh as my standard base textbook. This is what I just picked. Apart from it, I very strongly insist on NCERT. Now, again, the question crops up, like many of you have asked up right here, that which NCERT should we take into consideration, old print or new print? Physical Principles of Geography, 11th standard NCERT. It's the new print that is much, much, much better than the older version. I put these 2 texts as mandatory read, and I repeat, as mandatory read. Reason is that as you start reading Savindra Singh in the latest print, it's any day far high better than any of the older prints that have been there from this publication and this author. Every chapter at the end has got the key terms written. And if you just scavenge out, get onto the bookstore, just try to scavenge out, go take the book and just scroll on the pages. You will find that in the last few years, the absolute hitting the bullseye type of term-based questions are coming from this text. Altiplanation, Savindra Singh. When I take up the reference of Peltier glacial cycle, Savindra Singh. So these are basically what is the point. Point is that I'm preparing, I have created a base, I have justified the dimension of complete orientation to it. I need to be aware of important terminology. Physical geography is all about terminology, isn't it? So what benefit I'm getting from Savindra Singh is that I'm getting a quick reminder of all the key terms at the back of every chapter. Now, that is the interesting and precisely the most supporting thing that I find in the new print of Savindra Singh. And that is the reason, base book, let it be. Let it be the base book. And now coming up to the students who I'm not having requirement of reading of the textbook because I have done classes. Does it go like this? For them, my advice is, you have prepared, you are doing classes, you are taking support of class learning, you have got the study material, you definitely are jotting down something in the class. Like I have got the very elaborate class notes that I dictate, we create out in the class. The prominent information blocks. Now you have it. After reading them in combination to your printed study material, you go and open questions asked in examination. Now I take any, I pick up geomorphology and I pick up denudation. I'm picking up a very basic term. Now, if I just take up this term denudation, I have taken class support. I'm aware of this term very well. I have understood this term. I'm aware of how to go about with in terms of its preparation. But if I see the nature of questions that have been asked, like nature of questions that has been asked in examination is subaerial denudation as contributed by American scholars. Now, if you are not in the practice, and I repeat, if you are not in the practice of writing up, framing up the answers, you will find this very simple question to be difficult. So the advice goes as, done with the classes, excellent. Willing to do the classes, take that baby step, read NCERT, then go to the class. Because if you are informed, then only you can actually understand what is going on in the class. When I say going to the class without having any knowledge of geography, it is a whiteboard on which we can paint anything. But then we are painting at our pace. And if you are not having any, your brain is blank with geography,
and you are getting onto the class, you will not be in the position of doing best. You will not be in the position of taking out best of the class. So if you are willing to take classes, read NCERT, then go to the class. Point one. If you are not willing to take classes, read NCERT, then add Savindra Singh to it. After adding Savindra Singh, you have to, I'm understood, I'm done with the topics, you have to get on to, and I have interacted with you several times with several videos, and every time I have told you, at least 20 to 25 years of the question must be there in your radar. You cannot afford to have questions less than that. So when you try to justify a topic, take any topic of your choice. You are finding a topic very difficult. Some of us find geological time scale, my God. Some of us find, say, weather mechanism difficult. I cannot even visualize it. How will I understand? And then how will I write? Things like that. We all have different challenge. So we have to ease out the thing. And when I'm easing out the thing, I need to always give myself a reminder that I'm the individual who have judged my individual problems, challenge area, and my individual capacity. All of us are blessed with one or the other capacity. We have to groom it up, right? So for the first 5 topics of your syllabus, I think I have made the point very clear. Mandatory read is Savindra Singh if you're not taking class support. If you are taking class support, then decide in accordance to the topics question that you are attempting to write, and you are finding, no, I cannot decipher the term. I'm still not very clear with what is the demand of the question. I need to go to this book. So this is your Bible, Gita, Quran, anything that suits you as per physical principles of geography. Apart from it, NCERT. And what is NCERT? This is my punchline statement, you can say. I insist that every student read NCERT so many times that they start reading in between lines. And if you have developed that, one time reading NCERT doesn't make any sense. Second time reading, it makes 5-10% sense. Third time reading, it starts making sense to me. Diagrams are very poor quality, agreed. But then you can easily supplement it with what you all of you read it for your general studies. Go Chi Leong. I say Go Chi Leong is a pictorial NCERT. You can easily take that reference because diagram is a must. I'll talk about that later. So for the first 5 topics, 2 mandatory texts. Now it comes on to selective readings. So here what we advise students is that you have to become very specific. You have to become very specific in regards to which chapter where. Now you cannot go hunting out for every textbook here and there. So 99% case is done. But for selective reading, what I advise is, like we have got fundamental principles of geomorphology. Excellently given in the text of geomorphology by Thornbury. And we have encountered a question which was pseudo-volcanism. Again, coming up from the principal head that is right there in Thornbury. So how do I select that out? You can take support. We are more than happy to help you out. You can easily take up some defined chapters or compilation of their notes precisely to be aware of what is the requirement of fundamental principles of geomorphology. If you keep an eye on the question paper that have been there in the last few years, have we not encountered the question? Structure is a dominant control factor, and I don't write thereafter
in the evolution of land form. Have we not encountered this question? We have. And this is one of the 10 fundamental principles of geomorphology. When I take the reference of fundamental principles of geomorphology, I need to take support of Thornbury. Some mentors suggest Strahler and Strahler. Strahler and Strahler are major, significant most authors when it comes to the physical principles of geography. But the content requirement of UPSC examination precisely molded since 2015 onwards, I don't find Strahler and Strahler to be anywhere a better text than Savindra Singh. But I definitely find some chapters of Thornbury, applied geomorphology, is quite significantly covered in Savindra Singh. Thornbury, if you are referring, you have got an excellent chapter which is giving you much consolidated and defined dimension of applied geomorphology. And let me write it here. When I take the reference of applied geomorphology, I'm talking about both. It is both that I'm talking about. It's geohydrology. What benefit you get is the point that I just made. And also economic geology. You are taking both of them. Both of them. Now, the point that I want to make here is that Savindra Singh is also giving me the understanding of these heads. But in Savindra Singh, the example is principally coming from examples is Indian, largely. So I can get case studies which are very good when I am attempting my paper to answer. And while reading Thornbury, I get examples from the global dimension. So that is the benefit that I can think about. So these 3 chapters of Thornbury is very important for you. This is in regards to what we can take up as geomorphology and its preparation, right? If I take support of climatology and talk about it. So basic text remains the same. What I advise is, now in the market, there is a book on physical geography by DSLR. So don't be carried away with it. You are not required to get into DSLR physical geography. That is not required. You are required to get into what? You are required to get into, it is climatology by DSLR. Climatology by DSLR is a very good book for weather mechanics. You know, when we learn geographical thought, we say such limited number of Indian geographers in the contribution to geography. A minimal. Ashok Mitra asked an examination. R. Ramachandran asked an examination. R.P. Mishra asked an examination. Minimal. They are very limited. But when it comes on to the textbooks for the preparation of civil services examination, I think that the change scenario, and you need to be very comfortable with this, all of you, that when we are preparing for an examination which has proved time and again to be extremely dynamic. I mean, it is this examination where everything goes so unpredictable. You are not very sure giving examination interview that will you be there in the final list or not. You are required to get to the examination all tomorrow, and tonight you are having the feeling I'm not prepared. If that kind of examination this is, which is known for its dynamism, how your preparation strategy can be static. So 2015 onwards, the complete requirement have molded. Simply saying that I'm master in human geography and it will do wonders to your preparation. No, sorry, it doesn't work that way. Gone those days when you could be selective with your preparation. Now it is impossible. You need to be intelligent. You have to be intelligent in selecting the questions that you are attempting in examination. But in your preparation, you have to be fulfilled. So for climatology, weather mechanics, I'm not saying Savindra Singh is not giving you weather mechanics. But in DSLR, I find information to be much more comprehensive, diagrams comparatively better. When I talk about weather mechanism, whether it is related to frontal mechanism, or it is related to air masses, or it is related to the turbulent weather sequences like tornadoes,
I find it to be quite a relevant text. So you are not taking support of any class. You are preparing climatology on its. No, you are preparing yourself. Savindra Singh will be your base book. NCRT will be the foundation one. Savindra Singh will be building block over it, the base book. And then for climatology, pick up DS Lal for weather mechanism chapter. This is what is my advice. Stepping next, oceanography. When I talk about oceanography, my punchline statement for this topic is sweetest little topic that goes with physical principles. So when it comes to the study of oceans, we are picking up the reference of oceanographic and the analysis. Savindra Singh remains my base. 99% it is done. But what is the key trick that you can apply? So when I'm learning oceanography, whether it is all these set topics, physical principles of ocean or physical properties, of the ocean water, I'm just writing few of them. Ocean water movements, I'm writing movements involving tidal mechanism, involving oceanic current system, continue to remain based on Savindra Singh. Marine sediments continue to remain based on Savindra Singh. But what should you do? Key, important factor, what you should not miss out is writing. Marine resources, marine pollution, United Nations Convention on Laws of Sea, and prominent partners of United Nations Convention on Laws of Seas, International Maritime Organization, International Seabed Authority, giving nod to the benthic mining. I am sorry to say Savindra Singh is largely silent. You have to be that focused and defined that you know what is missing when it comes to your preparation and what is done. कैसे पता चलेगा? How will you know? आपको कैसे पता चलना है? आपने खुद prepare करा है. You are not taking support of any classes. कौन आपको गाइड करेगा? आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं? Are you having complete content with you or not? कुछ भी कैसा भी चैलेंज, उसके लिए सिंपल सपोर्ट क्या है? Previous year questions. And mind it, when I say previous year question, take 20-25 years in your reference. इससे आपको ना दो benefit number one, you come to know where your preparation is going. समझ में आ रहा है? आपको पता चल जाएगा. मैंने टॉपिक तो तैयार कर लिया. ओशियानोग्राफी में लिखा था salinity. I have learned salinity. मुझे समझ में आ गया salinity का क्या मतलब है. How it influences density of the ocean water. How density of ocean water is significant because it will be regulating the habitat and the ocean water movement and every other thing. How do I know that I'm 100% prepared? I open up previous year questions. I pick up previous year question. I try to solve out, and while solving out, I come across नहीं अभी इसमें कुछ कमी है. मुझे नहीं समझ में आ रहा. I'm not completely done with the difference that goes with epilimnion, metalimnion. I'm not very clearly done with the difference that goes up with surface mixing zone, pycnoclinal zone, haloclinal zone, thermoclinal zone. अब एग्जामिनर तो मुझसे कोई भी टर्म पूछ सकता है. So I put myself to the question scenario and then judge my position. Once I judge my position, I know that I need to add something. So इसलिए जब आप ओशियानोग्राफी, बिल्कुल स्वीट सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान है, सबसे आसान टॉपिक है एक्चुअली. कंटेंट वाइज भी बिल्कुल ही मिनिमल है. सबसे बनती तो बाय डिफॉल्ट जियो और समझिए. लेकिन जब आप इसकी तैयारी करते हो तो इसका जो डायनामिक पार्ट है ना, उसमें सविंद्र सिंह मेजरली साइलेंट है. तो कोशिश ये करें कि आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर लें.
the contemporary edge, and it is only for the contemporary edge that I have advised you to take up the reference of no. It will help. It will certainly help when it comes on to the reference of study that is related clearly to preparing oceanography. So this is about oceanography. Now, when I take reference of our next, that is bio and environment geography, उसके लिए क्या करें? अब बायो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट ज्योग्राफी का सिलेबस इतना हॉचपॉच है कि उसको सेपरेट करने की तो हम कभी सलाह देते नहीं। हम अपने क्लास कवरेज में भी इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल साथ लेकर चलते हैं। देयर इज नो पॉइंट सेपरेटिंग देम, क्योंकि सॉइल लिखा बायो ज्योग्राफी में, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी लिखा एनवायरमेंट ज्योग्राफी में, देन यू आर गेटिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन रिटन इन योर biogeography, and you have got ecosystem restoration written in environment geography. तो ऐसे इनकी पिंकी पंक्ति करके थोड़ी तैयारी करते हैं, आपको एक जस्टिफिकेशन लेना है ना कि तैयारी करने की। तो आप इन दोनों टॉपिक जिसमें आप बायोस्फीयर से कंसर्न हो, सविंद्र सिंह रिमेन्स योर, बट इसके अलावा एनसीईआरटी बायो 12th स्टैंडर्ड लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। बहुत अच्छा बुक है अगर आप खुद तैयार कर रहे हो, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत अच्छी किताब, आप बिल्कुल आराम से इस बुक को अपने रेफरेंस में ले सकते हो। Now because this topic overlaps with your general studies, environment, ecology, biodiversity and climate change, and we do encounter very factual questions from the fundamental principles of ecology. So you can also take up the SCERT of Tamil Nadu. That is a good book that you can take into reference. So I can write it here. It's not required for main optional preparation. When I prepare the notes and distribute it to the students studying with me, it involves biology, NCERT, SCERT, because without them डिस्टिंक्शन, क्योंकि बायोलॉजी में जो आपकी अडेप्टेशन है, स्टेनो ऑर्गेनिज्म, स्टेनोथर्मल, स्टेनोहलाइन, यूरीथर्मल, यूरीहलाइन, comes full stop. You do have mention of estivation, you do have mention of hibernation, full stop. But when it comes on to the adaptation of heterotrophs and phototrophs, you have got plenty of more terms, and you never know, आपका short length question में वही आ जाए। आप जब कमेंसलिज्म की बात करते हो या सिम्बायोसिस की बात करते हो, then you have got many of the deviated reference, mutualism, commensalism, symbiotic relation. I need to be aware of much detail for you, so we can complement it there. Fundamentals, जिसको static part of ecology या biosphere कहते हैं, that readily gets prepared from, of course, Savindra Singh, combining with this. But when it comes to environment geography, कोई सा भी टॉपिक, मतलब हम इसको ऑर्गेनाइज ऐसे ही कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है ऑर्गेनाइज करने का। क्या करो, एक तो इकोलॉजिकल अडेप्टेशन का हेडिंग लो ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना। तो आपने एक हेडिंग ले लिया इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस, दूसरा हेडिंग ले लो ह्यूमन इम्पैक्ट। इतना इजीली ऑर्गेनाइज होता है आपका कंटेंट कि आपको उसको मैनेज करना खुद ही आसान लगने लगेगा। और तीसरा ले मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, तो दोबारा से टर्म अडेप्टेशन आ गया तो ऐड कर देते हैं, टू इंड्यूस्ड चेंज, जो चेंज हमने इंड्यूस करा उसके अडेप्टेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ तो हम ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, सो दैट इज नेचुरल सिनेमा, है ना। आपने अपने टॉपिक को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जो आपका लेफ्ट आउट टॉपिक है, माने जो कन्वेंशनल हो गया, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी हो गया, व्हाट इज प्रिंसिपल सॉइल प्रोफाइल, सॉइल जेनेसिस, सॉइल फॉर्मिंग रेजिम, वर्ल्ड सॉइल टाइप वो भी हो गया, व्हाट इज वेजिटेशन टाइप डन, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ जूओ ज्योग्राफिकल प्रोविंसेस डन। माने सारा कन्वेंशनल पार्ट जब हो जाए तो आप अपने सिलेबस को इन 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने इन 3 पार्ट को डिवाइड करा, ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के लिए सबसे बढ़िया टेक्स्ट गो ची लियो,
क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपको पढ़ने के लिए कोई भी एडवाइस करता है तो गलत एडवाइस करता है, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की कोई भी बुक is not updated. And I mean, why should I invest my energy, mind, time, money, anything in the textbook which was published I have gradually, Aditya, I have gradually, and Ramlal, I have gradually become English speaking faculty. Because with the online classes, there has been the compulsion sometimes, ma'am, please explain it in Hindi. या एक वर्ड को ट्रांसलेट कर दो, नहीं समझ में आता है, तो you have to talk about that. And then some of us, we are not very comfortable with Hindi, so always remain in English. So it goes that way. Okay, nice to see that. Now carefully understand. When I talk about, when I take into reference the study that is related to these three heads, जब आप इन तीन heads की बात कर रहे हो, तो आपको इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट मिलता है. अब ध्यान से समझना, ये कोई भी टेक्स्ट बुक से सॉल्व नहीं होगा. क्लासेस की हेल्प ले रहे हो, किसी भी फैकल्टी की हेल्प ले रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट वो आपको जरूर देंगे, है ना. लेकिन इसको आप कैसे ऑर्गेनाइज करो. इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के लिए गोचिलियों लेने का बेनिफिट क्या होगा. इकोलॉजिकल अडेप्टेशन में गोचिलियों को लेने का बेनिफिट ये होगा कि आपके पास सारे एनवायरमेंटल रीजन्स है ना. I always call it 9+3 environmental region. आपके पास तो सारे environmental region, आप उन सारे environmental region का ecological adaptation, fishing है, agriculture है, सबके बारे में justify करेंगे, है ना. Once you are done with that ecological adaptation, आपको इसमें एक logic क्या लेना चाहिए. Human ecological adaptation can be interrelated to your agricultural geography. ये tip है, इसको आप trick बोल सकते. प्लस यू कैन रिलेट इट टू एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से भी रिलेट कर दो, और जो भी आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, जैसे आप जियोमॉर्फोलॉजी में इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ते हो, आप ओशियानोग्राफी में मरीन रिसोर्सेस के बारे में पढ़ते हो, वेर यू डू टॉक अबाउट मेजर फिशिंग ग्राउंड और द बेंथिक रिसोर्सेज एंड एक्सेट्रा. तो सारे ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन और मेजर एनवायरमेंटल रीजन के पॉइंट में आते हैं, है ना. आप उनके साथ इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. तो आई काउंट इट एज अ कन्वेंशनल है. जो चैलेंजिंग है वो ये है. तो ह्यूमन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ह्यूमन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को समझने के लिए आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं, तो क्या करेंगे. आईपीसीसी के असेसमेंट रिपोर्ट मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है. यू नीड टू टेक अप द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड IUCN. आप बोलोगे इतनी सारी प्रिपरेशंस हम अकेले कैसे कर सकेंगे. तो आपको ये चीज नोटिस करनी है कि IPCC don't come up with the annual report, we all are aware of it. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और IUCN की एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश होती है. आपने जब एक बार कोई अपना बेस तैयार कर लिया, खुद करा या क्लासेस की हेल्प से करा, कैसे भी करा, आपको पता है कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट का मतलब क्या. ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन हाइड्रोस्फीयर, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन लिथोस्फीयर, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोस्फीयर, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन हाइड्रोस्फीयर. माने आपने चारों रिंग का एक बेस क्रिएट कर लिया. अब अगर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कोई भी डेटा रिलीज होगा, तो क्या न्यूज़पेपर्स में उसके लिए इन्फोग्राफिक्स या सम फ्लैशिंग न्यूज आइटम नहीं आएगा. बिल्कुल आएगा. आपको बस उसको ऐड ऑन करना. अब ये एडिंग ऑन ऐसा नहीं होता कि साल के अंत में हम 365 सर्कल वाला नोट्स पिकअप कर ले और हम तैयार कर ले. दैट डजंट वर्क. दैट डजंट वर्क. आप सबको पता है दैट डजंट वर्क. आपको उसको डेली बेसिस पर, हर दिन तो कोई रिपोर्ट रिलीज नहीं हो रही, बट ऑन डेली बेसिस यू नीड टू अपडेट. सो जब आप कहते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट, यू नीड टू टेक IPCC, क्योंकि IPCC ही तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बोनेशियस एरोजोल, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, कॉजेस ऑफ देम, कंसिक्वेंसेस ऑफ देम, सबके बारे में बात बता रही है.
यू हैव टू टेक रेफरेंस ऑफ द स्टडी रिलेटेड डायरेक्टली टू देम, ठीक है। तो ये आ गया कंटेम्प्रेरी, बुक्स इसमें कोई हेल्प नहीं करेंगी। सिमिलरली व्हाट आर द मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, अब इसी में सारे टाइनी माइनी हेड्स ऑफ योर सिलेबस सिस्टम बन, चाहे आप जब आप मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन की बात कर रहे हो ना, तो सॉइल कंजर्वेशन, afforestation, biodiversity conservation, ecosystem restoration, hazard risk mitigation, climate change mitigation, सब कुछ आ गया। तो मेरे ख्याल से मुझे कहने की जरूरत नहीं है that this also goes very clearly contemporary, and this is something which is I myself believe, ऐसा टॉपिक है ये कि आप 95% प्लस मार्क्स ले सकते हो। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप एग्जामिनर को इतनी अच्छी तरह से कन्विंस करके एक इतना वंडरफुल कैटेगरी ऑफ मार्क्स, क्योंकि कन्वेंशनल हेड में आप कितना जाओगे डेविएटिव, यू कैन नॉट। सो हियर यू हैव टू बी वेरी क्लियर, लाइक आई वाज जस्ट डीलिंग विद दिस टॉपिक इन द क्लासेस दैट आर जस्ट, तो हमने कहा सारे स्टूडेंट लिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो 5 फोल्ड है जो आईपीसीसी हमेशा बता रहा है, लेकिन 6th असेसमेंट रिपोर्ट में आईपीसीसी ने 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऐड कर दिए। आपने अगर ये 7 डायमेंशन अपने आंसर में लिख दिया तो एग्जामिनर किस पॉइंट पर आपके मार्क्स कट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो क्रिएट क्या करना है, यहाँ पर आपको डायमेंशन, इस टॉपिक में यू हैव टू जनरेट आउट व्हाट इज कॉल्ड अपडेशन, that is by default there, so you cannot ignore out on updation, तो यहाँ तो आ गया अपडेशन। और इस टॉपिक में अपडेशन के साथ आपको क्या ऐड करना है? डायमेंशन, ऑल फ्रॉम कंटेम्पररी सोर्सेस। यहाँ पर एक बेस फंडामेंटल के लिए आपको डेफिनेटली सविंदर सिंह हेल्प करेंगे। some NCERTs and SCERTs are also going to help, but major part of syllabus has to be prepared from contemporary sources। तो न्यूज़पेपर का हेल्प ले, डाउन टू अर्थ मैगजीन हम एडवाइस करते हैं, हम 3 ही मैगजीन एडवाइस करते हैं, योजना कुरुक्षेत्र एंड डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ में आपको कुछ केस स्टडीज मिल सकती है, बट टू कवर अप ऑल दीज थिंग्स इट इज इनफ, सो यू कैन अप्लाई दैट। This is about the first 5 topics of our syllabus. What do I do next? I pick up अच्छा, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी पिकअप करा ना, इंटीग्रेशन का काम शुरू कर दो। इंटीग्रेशन का काम शुरू करने से क्या बेनिफिट होगा हम आपको समझा। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपने डेफिनेटली पर्सपेक्टिव, I'm describing perspectives, then you have population settlement geography, then you do have economic geography, you also have regional geography, and I very clearly say या तो उसको यहाँ पर ऐड करना, या फिर इनको इन्हीं तीनों चारों ब्लॉक के साथ ऐड करना, जहां पर जो अप्रोप्रिएटली मैच करता है। तैयारी ऐसे ही करनी है। तैयारी जब तक रैशनल नहीं होगी तब तक वो कभी भी फुल प्रूफ नहीं हो सकती। यू हैव टू टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ओवरलैप। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, कंटेंट बिल्डिंग की बात अभी हम नहीं कर रहे। तो जब हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो हमें कौन सी टेक्स्ट का रेफरेंस लेना चाहिए, विच इज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉर मीटरिंग। तो यहाँ पर हम आपके लिए अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनते जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक आपको रीड करनी है वो सुदीप्ता अधिकारी की है फॉर पर्सपेक्टिव, इफ यू आर नॉट टेकिंग सप्लीमेंट्री क्लासेस। तो मॉडल्स, थ्योरीज, लॉ और पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमने इनको साथ साथ लिखा है तो हम 2 टेक्स्ट बुक साथ में लिख दे रहे हैं। एक तो हमने ज्योग्राफिकल थॉट की जो बुक है सुदीप्ता अधिकारी की,
देखो एक बात बहुत क्लियरली दिमाग में डाल के रखेंगे स्टूडेंट्स कि माजिद हुसैन की बुक है ज्योग्राफिकल थॉट में, नो डिनायल, अच्छी किताब है, लेकिन माजिद हुसैन की किताब में जो एक जिसको कहते हैं कंसेप्ट इवॉल्व करना, दैट आई एम नॉट सपोज, मेरे को अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया व्हाट इज फिनोमिनोलॉजी and identify its relevance in the geographical study. So I do get information from Majid Hussain who contributed to phenomenology. Rel. What is phenomenology? Reality is what is perceived by human mind, and that mental world comes from world of experience. ठीक है, मुझे information मिला, लेकिन क्या मैंने उस information को read करके वो perspective evolve करा जिससे कि मैं answer लिख सकूं? I don't get that. I get the clarity of the concept from सुदीप्ता अधिकारी. तो अगर आपने बेस से यार करना है, जो कई लोग एडवोकेट करते हैं कि नहीं भाई हम भी एडवोकेट करते हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम नहीं करते, लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि when you try to take up सुदीप्ता अधिकारी, it do gives you the prehistoric genesis, then the important paradigms in geography, different ideas, different methods, and how they have paved the way to the subsequent. So prehistoric idea सिर्फ माजिद हुसैन की किताब में है, ये गलत है. Prehistoric base तो create करना ही पड़ेगा. If I'm not aware of Greek scholars, Roman scholars, Arab contributors, I will not be in the position of doing justice to this topic. Let me put it very simply. So you have to be aware of it. Syllabus में नहीं लिखा है तो नहीं लिख रहे लोग. जब तक फाउंडेशन तैयार नहीं करोगे बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे? नहीं हो सकता. अच्छा, लॉज एंड थियरीज मॉड्यूल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी लिखा है, इसलिए यहाँ पर एक और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं. बेसिकली इट इज अ मस्ट रीड. जैसे हमने फिजिकल प्रिंसिपल में कहा ना, सविंद्र सिंह इज मस्ट रीड विद एनसीईआरटी, तो यहाँ पर एनसीईआरटी तो डेफिनेटली है, बट हम कौन सा ले रहे हैं? रूपा मेड सिंपल पार्ट 2. तो रूपा सीरीज का पार्ट 2. पार्ट 1 अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हो, जो फिजिकल प्रिंसिपल्स के लिए है. पार्ट 2 में बेनिफिट क्या है ये समझाते हैं आपको. रूपा मेड सिंपल पार्ट 2 का सबसे बड़ा बेनिफिट कहां पर आ रहा है? इट गिव्स यू इन वन बुक almost all the major laws, theories of human geography. सारे के सारे मॉडल, सारे के सारे लॉ, सारे के सारे theories आपको एक ही किताब में एक साथ मिल जाते हैं. आपको उसको समझना है इससे. लेकिन क्वेश्चन अब ऐसा थोड़ी ना पूछता है व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल. क्वेश्चन ऐसा भी नहीं पूछता व्हाट इज मेंट बाय primate city concept or rank size rule or Perrock's growth pole concept. We don't get that question. We get the question critically exam judge the वाले book मेरा. So मुझे concept को पता होना चाहिए, then only I can write the answer. So this book is going to give you a very base and required elaboration of understanding what are the laws, concepts, theories of human geography. तो अच्छी किताब है. इसके साथ आप ऐड कर लो ह्यूमन ज्योग्राफी, जो प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है ना 12th क्लास की एनसीईआरटी, उसको आप ऐड कर दीजिए. 12th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी की प्रिंसिपल्स, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको आप ऐड कर दो एंड दैट विल सफाइस. तो 2 हेड्स के लिए तो ये वाला ब्लॉक हो गया. अब आ रहा है जो आपके बाकी सारे ब्लॉक्स. इन बाकी सारे ब्लॉक्स के लिए लेट मी बी वेरी क्लियर, कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं. तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे थोड़ा सा रैशनल ओरिएंटेशन लेकर सबसे बेसिक किताब जो मुझे मैक्सिमम परव्यू में कवरेज दे देगी वो है माजिद हुसैन साहब की ह्यूमन ज्योग्राफी. अच्छी किताब है, आपके सिलेबस का मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दे. पॉपुलेशन ज्योग्राफी नहीं कह रहे, ह्यूमन ज्योग्राफी कह रहे. ह्यूमन ज्योग्राफी से बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? जो आपका पूरा मेजर सेक्शन है ना ह्यूमन ज्योग्राफी का, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक वेरिएबल, उसकी थ्योरीज लाइक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल भी मिल जाएगा, माल्थूजियन कंसेप्ट मिल जाएगा, न्यू माल्थूजियन कंसेप्ट मिल जाएगा. मतलब एवरीथिंग दैट यू आर बेसिकली लुकिंग इन फॉर एक अंडर वन रूफ मिल जाने वाली जो बात होती है ना, वो मिल जाएगी यहाँ. लेकिन आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू ना तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी ना इकोनॉमिक ज्योग्राफी. अब कोई सा भी टॉपिक लो,
इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। या हमारे पास ज्योग्राफिकल थॉट में लिखा हुआ टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। क्या ये टॉपिक आपको लगता है कि किसी भी टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर हो सकते हैं? जब यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी हर साल डेमोग्राफिक डेटा दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि आप किसी एक ईयर का डेटा बेस लेकर अपना काम कर सकते हो? नहीं हो सकता ना ये। तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपडेशन लेने की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है। एंड व्हेन आई टेक रेफरेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन, यू नीड टू जस्टिफाई कि बेस के लिए तो इस किताब का जरूर रेफरेंस लो। अगर आप क्लास का सपोर्ट नहीं ले रहे हो, एंड एवरी टाइम विद अ स्टार मार्क एडिंग दिस, अगर आप क्लास का सपोर्ट ले रहे हैं तो आपका टेक्स्ट बुक रीडिंग तो अपने आप ही कम हो जाएगा। आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर के लिए, बिकॉज यू नो ऑल ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग को कई बार क्लास का सपोर्ट लेने के बाद भी किसी एक टॉपिक के लिए, किसी दूसरे टॉपिक के लिए ऐसा लगता है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, आई नीड टू हैव सर्टेन रीडिंग, है ना। तब आप रीड करें, जहां पर एनसीईआरटी जरूर रीड करनी चाहिए, या माजिद हुसैन ह्यूमन ज्योग्राफी एक बड़ा बेस बुक है फॉर सेक्शन बी, तो आपको रीड करनी चाहिए। बट वो हो गया एक ऑप्शनल थिंग ना, बिकॉज यू हैव गॉट सपोर्ट ऑफ योर नोट्स। पर अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर यू हैव टू रीड देम। तो चैप्टर 1 से लास्ट रीड तो जरूर करेंगे, एक पर्सपेक्टिव भी क्लियर होगा, लेकिन देन यू हैव टू ऑलवेज कीप इट ऑन दी अपडेशन नॉब। जब तक उसको नहीं करोगे तब तक आपका प्रिपरेशन फुल प्रूफ नहीं है। तो आई सजेस्ट दीज बुक्स। रीजनल ज्योग्राफी की बड़ी सारी किताबें हैं, आरपी मिश्रा की भी बुक है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये किताबें 1970s डेटा बेस है। दोबारा बता रहे हैं, these books are 1970 based। वो किताबें हम पढ़ते थे जब we were doing our post graduation in geography। So database इतना old है, pre globalization, come on you can understand, कहाँ से रेलेवेंस है उसका। So books नहीं है यहाँ पर, एक बेसिक फाउंडेशन के लिए you can take support there। रूपा मेथ सिंपल ले लिया, ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन ले लिया, सुदीप्ता अधिकारी, एंड देन एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी। आई थिंक दैट इज द बेस रिक्वायरमेंट। उसके ऊपर आपको हर चीज कंटेम्प्रेरी एज में बिल्ड करनी। ग्लोबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी क्राइसिस। अब आज की डेट में एनर्जी क्राइसिस हैज टू डू नॉट जस्ट विद रशिया यूक्रेन टग ऑफ वॉर, but also to do with the entire range of, complete range of ecological challenges that are related to the conventional causes, right? Also the challenges that is related to technology and heavy investments that goes up with the non-conventional systems. Violent conflicts, I've said Ukraine and Russia. तो काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है, बुक से कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये आपने एक फाउंडेशन क्रिएट कर लिया, उसके ऊपर आपको तैयार करना। सो इट गोज दिस वे। तो ये बेसिक टेक्स्ट हैं जो आप पेपर 1 के लिए रेफर कर सकते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी फिर वही सजेशन है, लिख नहीं रहे, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चों अपने दिमाग में इस चीज को ऐसे बिठा लो कि मेरी तैयारी 10% से ज्यादा नहीं है। आई एम नॉट डन विद मोर देन 10% ऑफ माई प्रिपरेशन इफ आई एम नॉट डूइंग question, solving question, framing answers of last year question paper। 2 benefit मिलते हैं उससे। Benefit number 1, I judge myself, where am I standing? I have prepared, मुझे सारे टॉपिक आते हैं, पूछो मेरे को, मुझे उनके सारे पॉइंट्स पता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर लिखने में आफ्टर राइटिंग 30 वर्ड्स 40 वर्ड्स आई एम स्टक अप। अब नेक्स्ट क्या, मेरे लिए मुश्किल हो गई। तो मुझे पता चल गया ना कि मेरे लिए कंटेंट नहीं है। आई डोंट नो द कंटेंट, आई डोंट नो हाउ टू राइट द थिंग, वो प्रॉब्लम पता चली। बेनिफिट नंबर 2 जो बड़ा इंटरेस्टिंग बेनिफिट है, क्वेश्चन का नेचर रिपीट होता है। क्वेश्चन का नेचर रिपीट होता है। आप हर 5-6 साल में क्वेश्चन का एक रेपिटेशन का ट्रेंड देखोगे। तो क्योंकि आपने पिछले 20-22 साल के क्वेश्चन सॉल्व करे, वो आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में एक बैठा बैठाया बेनिफिट दे देगा कि आपको ज्यादा ब्रेन ग्रिल करना नहीं, एक रेडीमेड आंसर आपके पास था, आपको उसको लिख देना है, तो बेनिफिट ही देगा ना आपको। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू सॉल्व, ठीक है। पेपर 1 में डायनामिज्म एनवायरमेंट ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा है सेक्शन ए में। सेक्शन बी को पूरा का पूरा डायनामिक ही समझ कर पढ़ो, क्योंकि पर्सपेक्टिव में भी कोई भी एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस,
ह्यूमनिज्म, रैडिकलिज्म, कोई भी पैराडाइम, क्वांटिटेटिव ट्रेडिशन, सबके सब मॉडल्स, टाइप्स ऑफ मॉडल्स, एग्जामिनर अब नहीं पूछता, और अगर पूछे भी तो भी आप क्या कोई आंसर को अपने केस स्टडी के बिना कंप्लीट बता दोगे? आपने कोई भी टाइप ऑफ पैराडाइम लिखा, examiner have asked you to describe this particular paradigm in geography. चलो एक simple example लेते हैं. Examiner have asked me to write crisis in geography leading to the development of positivism. A positivism of Auguste Comte is related to separating normative and empirical, है ना? Normative and empirical. आपने वो जजमेंट दे दिया ऑगस्ट कॉम्टे का, नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पेरिकल, एंड देन स्कैफर, एम्पेरिकल स्कैफर हार्टशोन डिबेट, एम्पेरिकल इंडक्टिव वर्सेस एम्पेरिकल डिडक्टिव, आप ये बात कर रहे हैं ना? आप ये आइडिया लिखकर, डू यू थिंक दैट एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू अ कन्विंसिंग मार्क्स? नहीं, आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा ना, दैट हाउ एम्पेरिकल इंडक्टिव इज favorable because they are actually the dualistic tradition in geography. Empirical inductive, it has its share of positivity. Empirical deductive also has its share of positivity. If it is empirical that is positive, normative is also positive. We geographers do believe in mental world, geography of mind. So आपको prove करना पड़ेगा. Cognitive study, you have to prove that point. And when you are proving that point, you are justifying your clarity and integration. ठीक है? अच्छा, ये हुआ आपका केस पेपर 1 का. अब अगर हम पेपर 2 पर जाएं तो हमें उसके लिए क्या करना है? पेपर 2 में एक बहुत बेसिक सा पॉइंट अगर जज आउट करते हैं तो ऐसे इसको अप्लाई करें. एक फिजिकल सेटिंग को छोड़ देते हैं. इसमें भी जो फर्स्ट सब हेड है, स्पेस रिलेशन ऑफ इंडिया विद हर नेबर्स, वो नहीं जाएगा, बट फिर भी एक फिजिकल सेटिंग को पिकअप करते हैं. एंड देन वर्सेस रेस्ट 9 टॉपिक्स. तो रेस्ट 9 टॉपिक्स को ब्रीफ पॉइंट पर अगर लिखने की फटाफट कोशिश करें. इट्स रिसोर्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इट्स एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इट्स इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, it is trade, transport and communication geography of India. हम ट्रेड ट्रांसपोर्ट लिखकर छोड़ देते हैं. एंड देन आई कंटिन्यू हियर. इट इज कल्चरल सेटिंग ऑफ इंडिया, ओके, दिस इज सेटलमेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रीजनल प्लानिंग ऑफ इंडिया. और लास्ट टॉपिक को नहीं लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये सबके सब तो रिलेट होंगे ना उसके साथ. किसकी बात कर रहे हैं? What you have to understand, you have to understand that when I take reference of study of Indian geography, एक physical setting ऐसा टॉपिक है जिसमें आप स्टैंडर्ड बुक की मदद ले सकते हैं. और वो बुक कौन सी है? बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी तो है ही. यू आर टेकिंग रेफरेंस ऑफ एनसीईआरटी. फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया 11th स्टैंडर्ड है, और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है वो 12th स्टैंडर्ड है. वो तो आप नहीं रहे हो, तो हम इसको एनसीईआरटी लिखते हैं. इसके अलावा यहाँ पर एक चॉइस रहती है आपके पास, फुलर कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. आरसी तिवारी और फुलर दोनों ही बड़ी बल्कि टेक्स्ट बुक्स हैं, बहुत ज्यादा बल्कि, बहुत बल्कि. आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो. दोनों के प्रोज एंड कॉन्स जज करने के बाद आई बिलीव कि खुल्लर थोड़ी सी ज्यादा बेटर टेक्स्ट बुक है, जहां पर जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं आपके, जो सिर्फ फिजिकल सेटिंग में है, रिलीफ फीचर, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज पैटर्न, क्लाइमेट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, है ना, वो सारे टॉपिक के लिए आप एक बुक पढ़ सकते हैं. उसके भी कुछ चैप्टर्स. बुक का सपोर्ट आपको पेपर 2 में नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता. एनसीईआरटी ले लो,
फुलर ले लो, पर वो आपको एक लेवल के बियॉन्ड हेल्प नहीं देगा। आप खुद से सोच कर देखो, मुझे ज्यादा यहाँ बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इन माई सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इंडिया, कहीं पर भी सिलेबस में कोई एक एग्जाम्पल ले लो, कृषि उन्नति योजना का मेंशन ही नहीं है। I don't have mention of कृषि उन्नति योजना. It still reads green revolution and its impact. It still reads white revolution, livestock, है ना, aquaculture, यही रीड कर रहा है ना। कहाँ लिखा है कृषि उन्नति योजना? तो क्या इसका मतलब कि आप अपनी एग्रीकल्चर की स्टडी जिसमें इरिगेशन मेंशन्ड है, वहां पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी मेंशन्ड है, आप उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे विदाउट मेंशनिंग द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट? नहीं कर पाओगे ना। तो पॉइंट क्या है, जो एक बेसिक फाउंडेशन है किसी भी चीज का, इंडियन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, जो उसका बेसिक है, कहाँ से शुरू है, क्या एलिमेंट्री पॉइंट है, वो आप फुलर से डिराइव कर लो। विच आर द क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड इन आवर कंट्री, सबसे चैलेंजिंग टॉपिक, because in the entire length and breadth of the country we produce almost every crop, कुछ exceptions को छोड़कर। तो क्रॉपिंग पैटर्न अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग टास्क है इंडियन कंटेक्स्ट में, पर चलो हमने उसको खुल्लर से सपोर्ट लेकर कर लिया। तो क्या क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ द ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ किसान कॉल सेंटर्स, सॉइल हेल्थ कार्ड, एंड यू हैव लिस्ट ऑफ इट। कहना हम क्या चाह रहे हैं? कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो आपके 9 टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस है, 8 काउंट करो, वो सब के सब कंटेम्प्रेरी डायमेंशन में तैयार होंगे। तो उसको कैसे तैयार करेंगे? जो सोर्स की अगर बात करनी है, अगर मुझे सोर्स की बात करनी है पेपर 2 के लिए, तो हमारा सिंपल सिंगल पॉइंट रेफरेंस, पब्लिकेशन डिविजन्स, 2 बहुत ही हम्बल मैगजीन्स, आप बोलोगे इसमें मेरा टॉपिक्स का तो मेंशन स्पेसिफिकली आता ही नहीं है। ठीक है, नहीं आता, समझ गए। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप इन टॉपिक्स को जज आउट करते हैं, जब आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं, तो आपको क्या समझना है, दैट योजना कुरुक्षेत्र मेक्स अप दोज मंथली मैगजीन। योजना इज डेवलपमेंटल मैगजीन, कुरुक्षेत्र इज रूरल डेवलपमेंट मैगजीन। ठीक है, these magazines have become extremely organized lately. They have got the principal head of the monthly magazine. This monthly magazine is only for Jal Jeevan Mission. This monthly magazine is only for the digital revolution. This is for social empowerment. This is for gender empowerment, and so on and so forth. तो आप जब मैगजीन सब्सक्राइब करते हो या मंथली जाकर खरीदते हो, यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जो अंदर 5, 6, 8 आर्टिकल्स हैं वो किस कंटेक्स्ट में। कई बार स्पेशल फीचर्ड आर्टिकल बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाता है, but largely the articles are in alignment to the main head. आप अगर पिछले शुरू करो, आज से शुरू करो, we are eyeing 2023 and 24 एग्जामिनेशन। ठीक है, आज से ही शुरू कर दो, आज ही सब्सक्राइब कर लो योजना कुरुक्षेत्र, आज ही मार्केट में जाकर आज इस समय की योजना कुरुक्षेत्र खरीद कर लो। जरा सिर्फ इंडेक्स पेज को खोल कर देखना, अपने सामने सिलेबस को ओपन कर, सिलेबस सिर्फ पेपर 2 का नहीं, सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 3 का भी, दोनों को सामने खोलना और योजना कुरुक्षेत्र का इंडेक्स पेज को ही ओवरलैप करना। आई चैलेंज, आई गिव यू गारंटी, आपको कहीं ना कहीं इतने आराम से ऐसे राइटअप्स और ऐसी केस स्टडीज दिखाई देंगी, आप बोलोगे वाओ, आई वाज नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल भी नहीं कह रहे सब्स्टिट्यूट है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन एनीवेयर रिप्लेस इट, आप रिप्लेस नहीं कर सकते, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, I take support of PIB. I also take support of Neeti Aayog's dashboard. And I definitely read newspapers. कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आपको ये सारी चीजें लेनी ही है, आपके पास चॉइस नहीं है। ये आप कर रहे हो, आप डेली बेसिस पर कर रहे हो। आपने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, लेट नाइट में पढ़ा, व्हाटसोएवर इज द केस, गुड नाइट स्लीप से पहले एक बार पीआईबी ओपन करके देख लिया कौन कौन से प्रेस रिलीजेस हुए, आपने उसको कोऑर्डिनेट कर लिया अपने न्यूज़पेपर आइटम से,
कोई एक ऐसा राइटअप लगा जिसके बारे में, कोई एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में बैकग्राउंड लिंक नहीं पता, या यू आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, सिर्फ थोड़ा सा गूगल सर्च करनी है, दैट यू कैन डू। नीति आयोग डैशबोर्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। कोई भी मेजर पॉलिसी फ्रेमवर्क जो इट विल बी गिविंग यूनियन गवर्नमेंट, कितने सारे न्यू एफर्ट्स हैं, आप सोच कर देखो। यू आर राइटिंग आंसर ऑन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया, सोच कर देखेंगे थोड़ी देर, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। आप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जब ले रहे हो तो वाटर इंडेक्स, जो वाटर डेवलपमेंट इंडेक्स 2.0 ऑफ नीति आयोग है, वो रेलेवेंट पॉइंट पर आएगा। जहां पर कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स एज द परफॉर्मर्स ऑफ द लगाव्स है, उसमें आपने एक बहुत क्लियर रीजनल पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं करा। विच बुक विल गिव यू दैट? नोवेयर। नीति आयोग के डैशबोर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए, दैट इज द ब्लॉग्स। द ब्लॉग्स दैट कम्स अप इन नीति आयोग डैशबोर्ड are as good as write-ups in योजना एंड कुरुक्षेत्र। खुद प्रिपेयर कर रहे हो तो इनका हेल्प लेंगे, क्लास की सपोर्ट भी ले लिया तो भाई क्लास एक पॉइंट पर आकर तो स्टॉप कर जाएगी। आप अपना अटेम्प्ट लेते हो 2 बार 3 बार, तो आपको हर साल कुछ अपडेशन की तो रिक्वायरमेंट रहेगी ना। वो रिक्वायरमेंट सिर्फ न्यूज़पेपर से पूरी करने की कोशिश मत करो। न्यूज़पेपर के अलावा पीआईबी और नीति आयोग के डैशबोर्ड को अप्लाई करो। आप सब टेक्स आगे इंडिविजुअल्स हैं, आप सबके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई दर्द नहीं है। मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट। आप राज्यसभा टीवी देखो, हम टीवी के थोड़े से अगेंस्ट इंडिविजुअल हैं, प्रूव भी करते हैं, ध्यान से समझेंगे। राज्यसभा टीवी अच्छा है, बट विद प्रसार भारती व्हाट आई इंडिविजुअली एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू विल अग्री टू मी, हम ऑल इंडिया रेडियो प्रेफर करते हैं। बेनिफिट क्या है? आपने अपने फोन में ऑल इंडिया रेडियो, बिकॉज नाउ इट इज ऑन ऑल द सोशल मीडिया, इट इज हैविंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म इजीली अवेलेबल, रेडियो खरीदने की जरूरत नहीं। आपने ऑल इंडिया रेडियो सुनने की आदत बना ली, तो आपने दिन के एंड में या दिन के शुरुआत में एक 15 मिनट या 20 मिनट का न्यूज सुन लिया, क्योंकि प्रसार भारती डोंट गो विद द ब्रेकिंग न्यूज कल्चर। माने कोई मेजर डेविएशन मिलेगा नहीं, बिल्कुल काम की बात मिलेगी। आपने जब वो सुन लिया, यू हैव लिसन्ड टू इट, so that information seeps in. Come on, current affair कोई एक बल्क में प्रिपेयर होने वाली चीज थोड़ी है, it prepares on daily basis. I hope you are agreeing to it. और जब आप उसको डेली बेसिस पर प्रिपेयर करोगे तो उसके लिए आपको डेली सोर्स चाहिए ना। तो डेली सोर्स न्यूज़पेपर तो है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, वो तो पढ़ना है। लेकिन अगर आपने उसके साथ पीआईबी एंड ऑल इंडिया रेडियो का 10-15 मिनट का न्यूज ब्रॉडकास्ट को सुनने का कोई भी कन्वीनियंट टाइम बना लिया, आप 15 दिन लगाओ। किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 15 डेज चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी इज सच, ठीक है। तो जस्ट टेक 15 डेज, अपने आप को पुश करना पड़ेगा आपको 15 दिन तक कि अरे मुझे न्यूज सुनना है, अरे मुझे पीआईबी ओपन करके देखना है, अरे मुझे नीति आयोग का डैशबोर्ड देखना है। 15 दिन के बाद वो हैबिट बन जाए। आप डेली बेसिस पर उसको देखें। और जब भी योजना कुरुक्षेत्र में कोई आर्टिकल है, 5-6 आर्टिकल एक ही चीज पर है, बहुत सारे केस स्टडीज आ गए, आपने उसमें से डिसाइड कर लिया मुझे ये आर्टिकल चाहिए, उसी समय उसको उस मैगजीन से फाड़ो और अपने उस नोट्स के साथ फाइल अप कर दो जहां उसकी रिक्वायरमेंट। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का है, रूरल डेवलपमेंट का है, टेलीकम्युनिकेशन का है, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन का है, जेंडर एनवायरमेंट का है, किसी का भी है, उसी नोट्स के साथ उसको फाइल अप करो। क्योंकि कल जब दोबारा याद करोगे वो कुछ पढ़ा तो था पर वो तो कहीं मिलने वाला नहीं थे। तो रिसोर्स को कंपाइल अप करना है पेपर 2 में। पेपर 2 में स्टैंडर्ड बुक से कोई हेल्प नहीं मिलना है। पेपर 2 का जो बेनिफिट है, सुनने में बड़ा चैलेंजिंग लगता है, बट लेट मी टेल यू, पेपर 2 पेपर 1 को आप कन्वेंशनली एक कंसेप्ट ओरिएंटेड पेपर कह सकते हैं। पेपर 2 इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। और यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट लेना है, बुक्स नहीं है, सोर्सेज बता दूं। अब जरा बहुत ध्यान से देखिए, और 2021 के रिजल्ट ने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से प्रूव करा है, और आपको भी ये चीज का बेनिफिट लेना है। तो आप ये जरा ध्यान से समझेंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी। चलो, हम सब ने तो टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर लिया, बुक नहीं है तो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज सेलेक्ट कर लिया। हम अपना स्ट्रैटेजी क्या बना? हम हमेशा कहते हैं आपको वॉरियर, आप जा रहे हो युद्ध मैदान में, पहुंच रहे हो युद्ध मैदान में, तो क्या बिना तैयारी के साथ पहुंचोगे कि सामने वाला कुछ फेंकेगा उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे उसको किस तरह से जवाब देना है? कम ऑन, दैट डजंट वर्क लाइक दैट, इजंट इट? एड हॉक तो चलेगा नहीं कि मैं पहले प्रीलिम्स कर लेता हूँ फिर देखूंगा कि मेन के लिए क्या करना है, मेन हो जाएगा तब मैं सोचूंगा कि इंटरव्यू के लिए क्या करना है, तो फिर
यहीं बैठे रह जाओगे, कुछ आगे पीछे नहीं होने वाला। कन्विंस्ड है? तो बहुत ध्यान से समझ जाओ, एक स्ट्रैटेजी चार्ट आउट करनी जरूरी है। टारगेट आपका जो भी है, आपका टारगेट जो भी है, जैसा भी टारगेट है, माने यू आर टेकिंग अप द रेफरेंस ऑफ टारगेट विच इज 2 ईयर 3 ईयर, जो भी आप लेकर चल रहे, गॉड ब्लेस यू, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो। स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी का क्या लॉजिक है? स्ट्रैटेजी सबकी इंडिविजुअल होती है, क्योंकि हम सबकी अलग अलग वीकनेस है और हम सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ है। और जो सबसे अच्छी चीज होती है तैयारी करते समय, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने से पहले आपको अपने आप को खड़े हो जाओ शीशे के सामने, या अपने किसी भी जो जो जिन पर आपके वेल विशर हैं, आप जिन पर फेथ कर सकते हो, जो कहीं पर भी डार्क स्टैबिंग ना करें, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स तो डेफिनेटली आर द बेस्ट चॉइस। आप उनके सामने या तो मिरर के आगे खड़े हो, एक्नॉलेज करो कि आई एम वीक इन दिस एंड आई एम स्ट्रॉन्ग इन दिस। मुझे ये चीज बहुत डिफिकल्ट लगती है, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, आई कैन डू दैट। एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट लेवल का है, एक्नॉलेज करो। एग्जामिनेशन के कुछ सेक्शन बड़े डिफिकल्ट है, मेरी समझ के बाहर है, बट मुझे तैयार करना है। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक्नॉलेज देम, चार्ट आउट, क्लैरिटी से डिवाइड करो कि मुझे मेरे लिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना। तो वो जो जिसको कहते हैं ना इंडिविजुअलिस्टिक टच, वो जरूर देना चाहिए। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो जनरल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। सो व्हेन आई टेक द वे ऑफ लिविंग, जिसको बहुत बेसिक कोर्स ऑफ वे ऑफ लिविंग कहते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमारा एक बहुत पॉपुलर बॉलीवुड मूवी है ना, जिसका डायलॉग है ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, कि हमें अपने हार्ट और दिमाग को समझाना पड़ता है। एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वेरी फंडामेंटल टेक्स्ट। I don't see it from the religious perspective. I see it as a text which gives you the way of life. I'm talking about Gita. That also very strongly says, that also very strongly identifies that you need to acknowledge. आपको अपने आप को बार बार समझाना पड़ेगा, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को समझाते हो ना, अपने आप को समझाना। आप कहोगे आई एम सच, आई एम ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। बिल्कुल हो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो या एजुकेटेड नहीं, लेकिन यू नीड टू एक्नॉलेज अपने आप को 1 साल तक 2 साल तक उसी कंसिस्टेंसी लेवल पर कैसे रखोगे। वेल प्रिपेयर्ड, मेंटली अलर्ट, फिजिकली एक्टिव, कि आज बीमार पड़ रहे हैं, कल बीमार पड़ रहे हैं, नहीं हो सकता ना, यू कैन नॉट अफोर्ड टू। एक्नॉलेजिंग बहुत जरूरी है। एक्नॉलेज करो अपनी वीकनेस को, एक्नॉलेज करो अपने आप को, रोज बूस्ट अप करो अपने आप को, बूस्ट अप करो। आई एम द बेस्ट, आई डू इट, अपने आप को ऐसे बूस्ट अप करने की आदत होगी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। अब आपको क्या इसमें क्या जज आउट करना है उसको नोटिस करेंगे ध्यान से। I've just stuck up with something. Just here we go. Okay. So आपको precisely करना क्या है strategy? So I just write it here. So the common strategy. I'm not talking about strategy that is for individually applying. सबसे पहली strategy है integration. हम हमेशा इसके बारे में बात करते हैं और beginning of this session I have spoken. It's integration. अब integration का क्या मतलब? Integration is integrate paper 1 with paper 2. Integrate physical geography with human geography. Integrate static topics with dynamic one. किसी भी डायनामिक टॉपिक का आंसर लिखना आप स्टैटिक के रेफरेंस से शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर क्वालिटी का है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेट ऑप्शनल विद जीएस। माइंडेड क्लास, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने आप को बार बार रिमाइंड करनी है, that you are preparing for 500 maximum marks in optional and you are getting the benefit of 350 marks of general studies hand in hand.
आप में से जिन लोगों ने इसको एनकैश कर लिया, दे आर द विनर्स। आपका पूरा का पूरा जनरल स्टडीज, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडिया पेपर 1, पूरा टोटल एग्रीकल्चर, लैंड रिसोर्स, हजार्ड, जनरल स्टडीज पेपर 3, टोटली बारिंग द एक्सेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी हम फुली छोड़ नहीं सकते, हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं अपने सिलेबस में। तो इवन इन जनरल स्टडीज पेपर 3 आई विल नॉट से दैट टेक्नोलॉजी डोंट फॉल इन आवर रडार, इट फॉल्स इन। तो ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल्स आप जाते हो जनरल स्टडीज के, ओके चलो लेट अस बी डिसेंट, हमने टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक हटा दिया, फिर भी आपने 350 मार्क्स ऑफ जनरल स्टडीज प्रिपेयर कर दिया अपने ऑप्शनल के साथ। तो आपके पास एक बहुत अपर एज आ गया ना। ज्योग्राफी डिफिकल्ट है, बिल्कुल है, ये एग्जामिनेशन ही डिफिकल्ट है, तो मुझे डिफिकल्टी को थोड़ी ना जज करना है, मुझे जज करना है कि उस डिफिकल्टी को मुझे कैसे ओवरकम करना है। इंटीग्रेशन इज द की। आपने अगर इंटीग्रेशन की कैपेसिटी डेवलप कर ली, विच कम्स विद राइटिंग, उसके लिए कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि हम आपके साथ ऐसा कर देंगे तो आप ये कर लोगे और आप ये कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं, आपको करना पड़ेगा राइटिंग। तो सबसे पहली चीज है कि आपको इंटीग्रेट करने की कैपेसिटी डेवलप करनी है, और इंटीग्रेशन के चारों डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, किसी को भी नहीं छोड़ सकते। तो पहला पॉइंट हुआ इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। पॉइंट नंबर 1, इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन से आपको इतना बेनिफिट और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अरे वाह, मैंने ये वाला टॉपिक तैयार करा, जियोमॉर्फोलॉजी में वोल्केनिज्म तैयार करा था, अरे ये तो पेपर 1 का वोल्केनिज्म भी हो गया। इकोनॉमिक जियोलॉजी में मैंने रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड मरीन रिसोर्सेस करा था, वो तो मेजर ग्लोबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। तो यू आर गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस, अच्छा इट इज गोइंग वेरी वेल एंड फाइन, यो हेल्प करता है, तो उसको जरूर करो। पहली चीज इसको करनी है। दूसरी चीज, आपको हमेशा डायनेमिक इंटेलिजेंट वर्क करना। इसका क्या मतलब है बताओ। डायनेमिक है, कोई स्टैटिक रूल मत अपनाओ, हर टॉपिक की अलग डिमांड है। इसलिए जब भी हमसे आप लोग पूछते हो ना कि हम आंसर कैसे लिखें, क्या होना चाहिए आंसर फ्रेम, तो हम आपको हमेशा यही कहते हैं ना कि आंसर फ्रेम ऐसा नहीं होता कि भाई इंट्रोडक्शन लिखो, बॉडी लिखो और कंक्लूजन लिखो, ऐसे थोड़ी लिख रहे हो। अगर आपने एक क्वेश्चन पिकअप करा विच इज अ वेरी कन्वेंशनल टाइप है ना, जैसे पूछा हुआ है 2020 में क्वेश्चन आया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है हम उसके फ्रेमिंग पर अभी नहीं जा रहे, पर कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्लेट बाउंड्री में आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, दस वी कैन से दैट डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, थोड़ा सा फुलिश लगता है ना। अगर कोई डायनामिक क्वेश्चन आ गया, कोई डायनामिक टॉपिक आ गया, वहां पर आपने अपने आंसर को कैसे इंट्रोड्यूस करा, आपने वहां अपने आंसर का कैसे कंटेंट इवॉल्व करा, आपने अपने आंसर को कैसे कंक्लूड करा, डज इट नॉट रिफ्लेक्ट द कोऑर्डिनेशन between your thought process and your writing skill? I hope you are understanding. वहां एग्जामिनर कन्विंस होगा ना लॉजिकल इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन से। You have to decide, you have to actually take into consideration continuous reference of how to go about with, how to justify, how to attempt dynamism. हर क्वेश्चन की अलग रिक्वायरमेंट है, हर क्वेश्चन की अलग फ्रेमिंग है, हर क्वेश्चन का अलग अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग है। इसलिए कहा डायनेमिक इंटेलिजेंट वर्क। बुक वॉर्म नहीं बनना, नहीं चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो देना। इंटेलिजेंट लिखने के साथ यहाँ पर हम एक पॉइंट जरूर ऐड करेंगे, यू आर विलिंग टू बी ब्यूरोक्रेट, है ना, यू आर नॉट विलिंग टू बी इंटेलेक्चुअल, है ना। तो इंटेलिजेंट वर्क में आपको ये जस्टिफाई करना है। तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, charting out relevant sources, बता दिया आपको, and approach. Always remember what will work for me
may not work for other, and what has worked for other may not work for you. आप किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट की प्रिपरेशन जर्नी को देखकर इंस्पायर हो सकते हो, होना भी चाहिए। उनकी जर्नी देखकर आप अपने अंदर एक जोश डेवलप करते हो, करना भी चाहिए। लेकिन क्या ये हो सकता है कि जैसा उन्होंने करा वैसा ही आप कर पाओगे? नहीं, क्योंकि हम सबके सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होते हैं। तो जब हम आपको कह रहे हैं ना इंटेलिजेंट वर्क, तो उसमें आपको रेलेवेंट अप्रोच और सोर्सेस को जस्टिफाई करना है। रेलेवेंट अप्रोच का मतलब होता है कस्टमाइज्ड अप्रोच, जो आपके लिए ही है, वो और किसी के लिए नहीं है। तो कौन चार्ट आउट करेगा उसको? आप ही तो करोगे ना। तभी इनको लिखने से पहले आई सेड एक्नॉलेज, आइडेंटिफाई। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि I'm beginning with preparation of civil services examination, running from one coaching to the other, कोई फायदा नहीं। पहले बैठो, रुक जाओ, 1 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ता लगता है, 3 हफ्ता लगता है, रुको, समझो, जज तो करो कि सिलेबस क्या है, आप कहाँ खड़े हो, आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है। अगर आपने फाउंडेशन ही तैयार नहीं करी तो आप उसके ऊपर कैसे जाओगे? मेरे पास ऐसे एक्सीलेंट स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल है, इतना बढ़िया लिखते हैं कि अगर उनको मेन लिखने का मौका मिले तो मेरे पास भी एक हाईलाइट करने के लिए आ जाएगा कि भाई मेरे ज्योग्राफी स्टूडेंट में इतने बढ़िया मार्क्स लिए, पर उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, जब तक आप फर्स्ट हर्डल क्रॉस नहीं करोगे, सेकंड पर कैसे जाओगे? तो आपको जज करना पड़ेगा ना कि व्हाट इज द रीजन दैट आई एम नॉट एबल टू। बाकी लोग तो कर पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्लासेस भी मैंने वही, बुक्स भी मैं वही पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो आपको अपना जज करना पड़ेगा ना, वेयर आई एम फाइंडिंग थिंग्स टू बी डिफिकल्ट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। एवरी स्ट्रैटेजी, पहली चीज, स्ट्रैटेजी हैज टू बी फुल प्रूफ, स्ट्रैटेजी हैज टू बी डायनामिक, एंड स्ट्रैटेजी हैज टू बी कस्टमाइज्ड। किसी का भी सक्सेस स्टोरी आप रिपीट नहीं कर सकते। आप किसी के नोट्स लेकर खुद सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नोट्स का मतलब क्या होता है? यू प्रिपेयर इट फॉर योरसेल्फ, यू प्रिपेयर इट एज द स्निपेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द इवेंचुअल रिविजन और इवेंचुअल रेफरेंस। तो आप अपने नोट्स बनाओ, आप अपने आंसर फ्रेम बनाओ, आप अपने डिफिकल्ट पॉइंट चार्ट आउट करो, आप अपनी स्ट्रेंथ चार्ट आउट करो। दैट इज हाउ यू डू। स्ट्रैटेजी को हमेशा कस्टमाइज्ड बनाकर चलिए। कस्टमाइज नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? Look, when I talk about, and I think this is a very good point, I have got many students more or less asking about it. So चलो इससे शुरुआत करते हैं। I am done with what I wanted to speak up. आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा about map pointing, ठीक है? तो map pointing की बात बताते हैं। In paper 2, I have a compulsory question on map marking. बिल्कुल सही है। It used to be the most marks fetching question once upon a time. अब नहीं, अभी ये कहना कि सबसे मार्क्स फेचिंग क्वेश्चन है, नहीं है। इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना आता है? 10, 15, 20, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। 10-15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसके साथ बेनिफिट क्या आएगा? इट इज द मोस्ट टाइम सेविंग क्वेश्चन। ये तो बेनिफिट डेफिनेटली, मतलब कोई भी एक आइडियल 10 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना टाइम लगे, उसके मुकाबले में मैप मार्किंग में कम समय लगेगा। ये बेनिफिट है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें आपको ये जज करना है कि मैप मार्किंग अगेन इज इंटीग्रेटिव और कंटेंट। जनरल स्टडीज पर्पस के लिए सेपरेट मैपिंग क्लासेस ले रहे हो, हम भी देते हैं, तो समझ में आता है। लेकिन आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो तो आप मैप को सेपरेट कैसे रखोगे? खुद से जज करो। आप प्रिपेयर कर रहे हो टाउन डेवलपमेंट, टाउन प्लानिंग। आज की डेट में टाउन प्लानिंग के 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। पहला प्रोग्राम स्मार्ट सिटी, दूसरा प्रोग्राम अमृत, तीसरा हृदय। क्या आप नहीं बात करोगे अमृत में कौन कौन सा मेजर मोबिलाइजेशन क्लास 1 में है? Which are the important smart cities? Which are the excellent examples of mobilized हृदय? कितना एफर्ट लगता है? प्रैक्टिस मैप उठाओ, सारे हृदय सिटीज को मार्कअप करो। मेकिंग सेंस?
आप प्रिपेयर कर रहे हो रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया और उसमें यू आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, फॉल्ट जोन्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सबमरीन कैनियन, आप उनको मार्क करो अपने मैप में। एग्जामिनर अल्टीमेटली मैपिंग आइटम्स वहीं से देगा। और उसके अलावा क्या, जब इंटीग्रेटिव ऑफ द कंटेंट है तो दोनों ही पॉइंट होगा ना। जो आपका स्टैटिक कंटेंट है हम कन्वेंशनल लिख रहे हैं, और जो आपका डायनेमिक कंटेंट है, कोई नया थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट, there is the mobilization of new gas filling centers, there is the mobilization of new ultra mega power project, there is the mobilization of new corridor of railways, roadways, civil aviation, नया airport in Kerala, will I not be adding it? वो तो मेरे information में है ही, बस मुझे practice क्या करना है, that I should take that name and I should add it to my list of the preparation. तो मैपिंग को अपने आप से किसी भी तरह से एक सेपरेट हेड बनाकर नहीं चलना है, वो कभी भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। आप हर टॉपिक, एवरी स्टेप, फिजिकल सेटिंग से शुरू करो और बिल्कुल एंड में पॉपुलेशन तक जाओ, हर लेवल पर पॉपुलेशन तक जाओ। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में ज्यादातर पॉपुलेशन से रिलेटेड ही चीजें हैं। अगर आप उन सब चीजों को ऐड ऑन करोगे कंटेम्प्रेरी एज से, लोकेशन के साथ अप्लाई करो, मैप उसी तरीके से प्रिपेयर होता है। There is no other way of preparing map. मैप को जब तक आप इंटीग्रेट करके नहीं चलोगे आप नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू आई अप्लाई, हाउ डू आई गो अबाउट विद द राइटिंग एंड हाउ डू आई नो दैट आई एम राइटिंग इट करेक्टली। ऑफ कोर्स जब आप राइटिंग प्रैक्टिस ले रहे हैं, राइटिंग इज अबाउट फ्रेमिंग, presentation, and time management. बेसिकली हमें सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट लिखना चाहिए क्योंकि सबसे क्रूशियल प्रॉब्लम यही इवॉल्व आउट हुआ। जब आप फ्रेमिंग की बात करते हो तो इट इज अबाउट कंटेंट, जब आप प्रेजेंटेशन की बात करते हो तो इट इज अबाउट डायग्राम्स, एनी सॉर्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, और टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स। 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए आइडियली आपका टारगेट क्या होना चाहिए, रीडिंग, फ्रेमिंग, राइटिंग सब कुछ करके 7.5 से 8 मिनट में खत्म करने की प्रैक्टिस करो, है ना। तो आप जब किसी आंसर को फ्रेम कर रहे हैं, आपने एक रूल बनाया, हमने पहले वाले भी एक वीडियो में ये वाली बात डाली हुई है। हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल में 3 मार्क्स के फ्रेम के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। उसको हम यहाँ अलग से लिख देते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर आपका मैक्सिमम मार्क्स 10 है, फिर 15 होगा, एंड देन यू विल हैव 15 एंड देन 20, ठीक है। हमारे पास ये 3 मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन है, ओके। नाउ इन 3 मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ पर आप 2 डायग्राम्स का लॉजिक लेकर चलो, यहाँ 2 to 3 डायग्राम्स का लॉजिक लेकर चलो, और यहाँ पर 3 to 4, हो सके तो 5 डायग्राम्स का भी लॉजिक लेकर चलो। मतलब अपने लिए एक सेट रूल बनाना। ज्योग्राफी इज अबाउट इलस्ट्रेटिंग, ज्योग्राफी इज अ स्पेशियल डिसिप्लिन। आपका कंटेंट क्या होगा दैट इज डिसाइडेड बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से कंटेंट फ्रेम होता है। आप जब भी कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हो देन यू प्रिपेयर A to Z ऑफ दैट टॉपिक, है ना। यू ट्राई टू लर्न एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक, but when you write the answer about that topic then it is what is the demand of the question. अगर क्वेश्चन आपसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पूछ रहा है तो आप सारी चीजें थोड़ी लिखोगे उसके बारे में, आप उसी पॉइंट पर लिखोगे। तो कंटेंट गोज समथिंग व्हिच इज वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक। जो स्टैंडर्ड रूल आंसर राइटिंग का होता है वो प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट होता है। प्रेजेंटेशन में more you are in the position of giving examiner illustrations. illustrations क्या शो करता है, आपकी इंफॉर्मेशन और आपका कॉन्फिडेंस। डायग्राम हाईलाइट करना, बबल में डालना, अंडरलाइन करना, ये क्या शो करता है, आप स्पेसिफिकली एग्जामिनर को कुछ पॉइंट्स बता रहे हो ना कि ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन करता है ये, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे ऐसे लिखना है और ऐसे शोकेस करना है। तो diagrams and illustrations add immensely add to the quality of your answer. और इन सबको करने के लिए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है, अगर मेरे पास लग्जरी, एक्सेसिव लग्जरी ऑफ टाइम हो एग्जामिनेशन हॉल में तो मेरे ख्याल से हम सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते। टाइम लिमिट है,
तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये तीनों चीजें जज आउट करनी है। हमने आपको बता दिया, बिगिनर हो तो 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट का टारगेट रखकर चलो, हर 10 मार्कर क्वेश्चन को 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो। 150 वर्ड्स लिखने हैं आपको, 2-2.5 पेज, उससे ज्यादा नहीं, एंड 2-2.5 इज 2 साइड्स ऑफ द पेज एंड हाफ अनदर। आप उसके हिसाब से ऐसे लिखना शुरू करो। नाउ कमिंग ऑन टू द इवैल्यूएशन। तो भाई देखो, इवैल्यूएशन के लिए तो या तो आप फॉर्मली अपने आप को एनरोल कराएं टेस्ट प्रोग्राम में, किसी भी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में। हमारे पास तो आप अगर हमारे पास एनरोल्ड स्टूडेंट है तो इवैल्यूएशन हम ही करते हैं और हम इंडिविजुअल फीडबैक आपको देते हैं। आई मेक श्योर दैट इट इज डन इंडिविजुअली। रीजन बहुत एविडेंट है, आपको जब तक इवैल्यूएशन नहीं मिले तब तक आप अपनी गलती को रियलाइज नहीं करोगे। हो सकता है आप नहीं लेना चाहते हो, आपने ले लिया, आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, आप दोबारा नहीं करना चाहते, व्हाटएवर इज द केस, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना एक ग्रुप बना सकते हो। आप लोग अल्टीमेटली तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, आपके अपने पीयर ग्रुप भी हैं, तो आप क्या करें, आप इस तरह से एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं ना। जैसे कंटेम्प्रेरी मैप आइटम्स कर रहे हैं तो एक ग्रुप का मेंबर जो है उसको आपने दे दिया कि इस वाले स्टेट के मैप आइटम्स तैयार करो, एक को बता दिया दूसरे स्टेट का करो, और आपने फिर कंपाइल कर दिया तो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। वैसे ही चेकिंग का काम भी करवा सकते हैं कि यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ ईच अदर। मैंने आंसर लिखा, यू इवैल्यूएट, आपने लिखा, आई इवैल्यूएट, that way also you can do. So that is also a very good way, apart from which you can take up the support. I think I have answered all the questions, and I have also taken a very important purview of what I'll say is the approach that I was willing to share. क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग आप आकर हमसे मिल रहे हो, we are having the talks on phone, कि समझ में नहीं आ रहा how to start, how to begin with। तो आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो ये सारी टेक्स्ट बुक जरूर लीजिए, एंड देन यू चार्ट आउट योर अप्रोच बाय सिटिंग अप एंड डिमार्केटिंग आउट योर सिलेबस। पूरा सिलेबस की फुल नॉलेज रखो। कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर टॉपिक ऐसा बिल्कुल मेक श्योर करना कि कोई भी टॉपिक ये मत सोचकर छोड़ देना कि ये तो एनर्जी क्राइसिस तो है, हो जाएगा, नहीं होगा। एनर्जी क्राइसिस, सेक्युलरिज्म, सब चीजों का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना प्लेट टेक्टोनिक और टेम्परेट साइकिल होता है ना। हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट ट्राई टू टेक दैट टू योर स्ट्राइड and chart out your strategy for the preparation. I think I can easily close down here. So happy learning from my side to all of you. Hope this live session is going to solve out many questions and doubts that are there in you. I hope it is going to give you a clear path of how you should proceed with your optional geography preparation with a defined book list and the planning strategy. You are the best and you will do it. So have confidence in yourself and bang on. Bye-bye. Happy learning.